Hello students, welcome to all of you in the second lecture of set theory. In the previous lecture, we have studied about the definition of sets, and as the definition of set is that a set is a well-defined collection of objects, and well-defined means that we can easily determine that a particular element is in the collection or not. That was the definition of set theory. Also, we have studied the types of the sets, that is empty set, singleton set, finite and infinite sets, and various examples which we have discussed in the previous class. In today's class, we will discuss about the subsets, proper subset, and the power set. Before going into the detail of that, I have taken some problems regarding to set builder form. So the main problem appears that how to convert a set, or you can say that a roster form into the set builder form. That is the main concern of many students, that and they are getting some problems in doing such type of questions. So I have taken some example and try to explain this. Just as this question, write the set A equal to 1, 3, 7, 15, 31 in set builder method or set builder form. So that is the question. This is the given set. It has the element 1, 3, 7, 15 and 31. So when you see this problem, these numbers are in this set, and if you think that how this number having the some pattern, so how to solve this problem, we will see this. Okay, so first of all, if you see, 1 can be written as 2 to the power 1 minus 1. 3 can be written as 2 square, that is 4 minus 1. 7 can be written as 2 to the power 3 minus 1. Similarly, 15 can be written as 2 to the power 4 minus 1. 2 to the power 4 is 16 and minus 1 is 16 minus 1 is 15. Similarly, 31, and that can be written as 2 to the power 5 minus 1. So when you observe this problem, what is happening here? First, 1 is 2 to the power 1 minus 1. So this 1 is fixed. In every there is 1 is going to be subtracted. But what is changing in every number? That is, you can write 3 as equal to 2 square, 7 as equal to 2 to the power 3 minus 1, 2 square minus 1. 15 can be written as 2 to the power 4 minus 1. So these numbers, power is going to be changed. Exponent of the 2 is changing, and from where to where? 1 to 5. Okay, that is the only number. Last number is 31. Okay, so can I write this by using some formula in the set builder form? This is in the roster form. Can you write it in the set builder form? So I write like this: A is equal to x such that x is equal to 2 to the power n minus 1. Okay, because I am seeing this formula is like 2 to the power 1 minus 1, 2 to the power 2 minus 1. So can I can write like this: x equal to 2 to the power n minus 1, where n is a नेचुरल नंबर. n क्या है यहाँ? नेचुरल नंबर है. ठीक, बट क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर है? नहीं है. कौन कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है n की वैल्यू? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे n लाइज बिटवीन 1 to 5. ठीक, क्योंकि n की वैल्यू क्या क्या है? 1, 2, 3, 4 और 5 ही है. तो इस बात को लिखने के लिए हम लोग कैसे लिखेंगे? n belongs to natural number, n lies between 1 to 5. क्योंकि इन जनरल यदि यहाँ आप 1 ये नहीं लिखते हो, है ना, तो आप गलत कर रहे हो. क्यों? क्योंकि 1 से इसका मतलब होता है n is between 1 to 5 and 1 also including, 5 also including.
तो इसका मतलब होता है 1 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, जस्ट लाइक इसमें 1.1, 1.2, 2.1 वो सब भी नंबर आ रहे हैं। तो जब हम क्योंकि लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ तो 1 2 3 4 5 5 ही नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें ये लिखना जरूरी होगा कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है सॉल्व। इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में, अभी रोस्टर मेथड में दिया हुआ था, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अगेन द क्वेश्चन इज राइट द set B in set builder method. So first of all, if you see, this is 5, this is 25, this is 125, this is 625. So 5 can be written as 5 to the power 1, 25 can be written as 5 to the power 2, 125 can be written as 5 to the power 3, similarly 625 can be written as 5 to the power 4. So there is a some pattern, that means एक फॉर्मूले के थ्रू इन सभी नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे, है ना। तो कैसे लिख सकते हैं बी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में? हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x is a member of element of set B such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to natural number। बट क्या सारा का सारा नेचुरल नंबर नहीं लेंगे? क्या नहीं लेंगे। कौन कौन से लेंगे? 1 2 3 एंड 4। तो इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n लाइज बिटवीन 1 to 4। एक्चुअली आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 इंक्लूड रखिए और इधर 4 की जगह 5 लिख दीजिए और यहाँ से इक्वल टू का साइन हटा दें। लेकिन 1 इंक्लूडेड, 4 इंक्लूडेड और 1 से 4 के बीच में, तो इसमें कौन कौन से नेचुरल नंबर हैं, 1 और 4 इंक्लूडिंग यदि हम कर दें तो आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 1 आएगा इसमें, फिर 2 3 4, ठीक है, यही 4 नंबर आएंगे और यही 4 आपको यहाँ पे पावर में है भी, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी पार्ट, जिसमें मैं सबसेट डिस्कस करने वाला हूँ, सबसेट्स ऑफ ए सेट। ओके, तो सबसेट का जो डेफिनेशन है वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर कुछ एग्जांपल्स से भी हम देखेंगे कि सबसेट किसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे, सपोज A and B are two sets such that every element of set A is also in set B. Then set A is called subset of set B and is denoted by A is a subset of B. This is the symbol. सपोज A और B कोई भी दो सेट है जिसमें इस तरीके से है कि हर एक एलिमेंट जो सेट A में है वो सेट B के अंदर भी होना चाहिए, है ना। A के अंदर जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is also in set B, then A set is called subset of set B. That is the definition of subset. And in mathematical way we can also represent it as, that means A subset of B implies that if A belongs to set A, then A also belongs to set B. Okay, and that is double implies. That means यदि A B का सबसेट है, A क्या है, B का सबसेट है, तो ऐसा जरूर होगा कि यदि कोई भी एलिमेंट, स्मॉल a से हम डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ सेट A को, सो A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A
देन ए मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, ए बी का सबसेट यदि होता है तो जो भी एलिमेंट ए से हम डिनोट कर रहे हैं सेट ए के अंदर, वो ए एलिमेंट बी सेट में भी होगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि ए सेट ए में है और साथ ही साथ यदि ऐसा है और ए बी में भी है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट होगा। दैट मीन्स एक एग्जांपल से आपको समझ सकते हैं इस बात को। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2 है ना, और दूसरा सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1,2,3। बहुत सिंपल एक एग्जांपल लिया है समझने के लिए, है ना। तो यहां यदि आप देखोगे तो ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, दो एलिमेंट है 1 और 2, और बी में क्या एलिमेंट है 1,2,3। ओके, तो यहां पे आप देखिए 1 जो है वो सेट ए में है, तो 1 बी सेट में है क्या, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, है ना। सिमिलरली इफ यू सी 2 इज इन सेट ए एंड 2 इज ऑल्सो इन सेट बी। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए देन ए मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी। यही कंडीशन है ना आपका इसका। यहां पे ए से हम कोई भी जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है उन सबको, एवरी एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं ए से। जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट यदि सेट बी में भी होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, ए सेट को हम फिर बी का सबसेट कहेंगे। ठीक, तो यहां पे क्या कहेंगे हम, ए इज ए सबसेट ऑफ सेट बी। दैट इज द सिंपल यू कैन राइट। ये पहला एग्जांपल हो गया। इसी तरीके से एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि मैं कहता हूं कि नेचुरल नंबर का जो सेट है ना, दैट इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, तो गलत बात नहीं है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड दैट इज ट्रू। सो नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स। सिमिलरली वी कैन से दैट सबसेट इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ rational numbers. Rational number is a subset of real numbers. So also remember this fact, that is a fact that natural number is a subset of integer, integer is a subset of rational number, rational number is a subset of real numbers. तो इसी में सबसेट्स का ही जो डेफिनेशन है उसी में हम एक बात और ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे कि इक्वल सेट में आपने देखा था, पिछले क्लास में मैंने इक्वल सेट का भी डेफिनेशन लिखवाया था। तो इक्वल सेट के लिए भी सबसेट की जो है वो कंडीशन को हम यूज करते हुए एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। इक्वल सेट्स, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B and B is a subset of A, then A is said to be equal to B set. That means ये क्या मतलब हुआ कि यदि हम कह रहे हैं कि A और B दो सेट हैं और इस तरीके से हैं कि A के सारे एलिमेंट B में है, मतलब A B का सबसेट है, और साथ ही साथ B के भी सारे एलिमेंट A में है। That means B is also a subset of A. Then we can easily say that A and B are equal sets. That simply means that means A equal to B double implies, that means ये कब होगा, जब A B का सबसेट हो and B A का सबसेट होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं आप। A equal to B यदि होगा तो कब होता है, जब A B का सबसेट हो और B भी A का सबसेट हो। एज फॉर एग्जाम्पल यदि मैं दो सेट इक्वल वाला जैसे पिछले क्लास में बताया था, ये सेट ले लेता हूँ 1,2,3 और दूसरा सेट ले लेता हूँ 3,2,1। थोड़ा ऑर्डर चेंज करने से, तो सेट के अंदर यदि सेम एलिमेंट है तो ऑर्डर चेंज करने से वो दोनों ही सेट इक्वल कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जैसे ए और बी सेट, पिछले बार भी बताया था कि ए सेट में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम बी में भी यदि है तो हम ए और बी को इक्वल सेट कहते हैं।
और यहाँ पे एक बात और देखिए, यहाँ पे ए क्या बी का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 2 and 3 इज ऑल्सो इन सेट बी, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड वी कैन ऑल्सो से दैट बी के भी सारे एलिमेंट, जो भी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो इन सेट ए, तो वी कैन ऑल्सो से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, बी क्या है, ए का सबसेट है। तो ऐसा यदि होता है कभी भी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए क्या है, बी के बराबर है, ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट्स है। तो एक बात आपको मैं समझा देता हूं यहाँ पे कि ये जो डेफिनेशन इक्वल सेट्स का लिखा था पिछले क्लास में मैंने, कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट है एग्जैक्टली वही एलिमेंट बी में भी यदि हो तो ए और बी इक्वल सेट्स है, वो तो डेफिनेशन है ही, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दो सेट को इक्वल होने के लिए। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इसका यूज जो है वो क्वेश्चन को प्रूफ करने में, दो सेट को इक्वल प्रूफ करने में हम हमेशा इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पूरे सेट थ्योरी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, है ना, और याद रखेंगे, ठीक। अब बात आती है कि प्रॉपर सबसेट किसको कहते हैं, है ना, व्हाट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो लिख लीजिए नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रॉपर सबसेट्स। Let A and B are two sets such that every element of set A is in set B and A is not equal to B. Then A is called proper subset of B and B is called superset of A. And we will take one example, just as A set, that is 1, 2, 3, and B set is suppose 2, 3, 4, 1. ओके, सो क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? तो देखो आप 1 2 3 यहाँ भी है, इसमें भी 1 2 3 है, ठीक है ना। तो ए सेट के सभी एलिमेंट बी सेट में है, और साथ ही साथ ए सेट और बी सेट इक्वल नहीं है, क्योंकि ए तो बी का सबसेट है बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। तो हम कहेंगे कि ए और बी इक्वल सेट नहीं है। एग्जैक्टली ये सारे के सारे एलिमेंट ही बी में नहीं है, इसके अलावा भी एक एलिमेंट है यहाँ, तो इसलिए ये सेट क्या है, इक्वल सेट नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट सिंपली इंप्लाइज दैट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। एंड ऑल्सो वी कैन से दैट B इज सुपर सेट ऑफ A, और इस बात को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं B इज सुपर प्रॉपर सबसेट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इस तरीके से आप डिनोट करते हो, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब होता है A के सारे एलिमेंट B में है बट A B के बराबर नहीं है। कभी कभी इस तरीके से भी किसी बुक में डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है ना। A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स A B के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला सेट है A, B इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ A, B, C, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये इस सेट के बराबर नहीं है, तब हम ये ऐसे यूज करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इतना ही मतलब होता है, ठीक है ना।
तो ये वाला जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सबसेट के लिए यूज करते हैं, और ये हटा देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। या सिंपली इसका मतलब होता है, जब हम ये लाइन नहीं देते हैं, इसका मतलब होता है कि इक्वल वाली कंडीशन जो है वो नहीं है, ये दोनों सेट जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम प्रॉपर सबसेट ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से आप डिनोट करते हो। देखो ना, प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट किया जाता है, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट बी में है बट ए बी के बराबर नहीं है। कभी कभी इस तरीके से भी किसी किसी बुक में डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक है ना, ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला सेट है ए कॉमा बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और ये इस सेट के बराबर नहीं है, तब हम ये ऐसे यूज करते हैं। ऑब्वियसली ऐसे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इतना ही मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो हम सिंबल यूज करते हैं वो सबसेट के लिए यूज करते हैं, और ये हटा देते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। या सिंपली इसका मतलब होता है, जब हम ये लाइन नहीं देते हैं, इसका मतलब होता है कि इक्वल वाली कंडीशन जो है वो नहीं है, ये दोनों सेट जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे सेट ऑफ ए सेट, सबसेट ऑफ ए सेट। जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एक सेट है ए, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1,2 एलिमेंट है, ठीक है ना। सो सबसेट्स ऑफ सेट ए, सबसेट्स ऑफ सेट ए कैसे आप लिखोगे, देखो यहां पे ध्यान से, आर। जैसे मैं इसी का सबसेट लिखने चाहता हूं तो मैं इस तरीके से एक सेट जो है वो डिफाइन कर लेता हूं कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जिसको हम फाई कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या ये वाला जो सेट है वो इस ए सेट का सबसेट कहलाएगा? तो यहां पे तो एलिमेंट है ही नहीं ना, तो मैं कह सकता हूं कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट है, मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, सिंपल सी बात है। उसके बाद दूसरा देखिए, ये वाला जो सेट है, सेट में एक ही एलिमेंट है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो यहां पे भी ये वाला जो सेट है उसको मैं कहूंगा कि इस सेट ए का सबसेट है, ठीक है ना। मान लीजिए ये सेट एक्स है, ये सेट वाई है ना, तो एक्स इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, वाई इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, लिख सकते हैं हम लोग। जेड ले लेते हैं, तीसरा सेट कैपिटल जेड, और ये ले लेता हूं मैं 2। क्या ये सेट इसका सबसेट है? तो यस, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन दिस सेट, दैट इज 2 इज इन अ जेड एंड 2 इज आल्सो इन सेट है। सो जेड क्या है? ए का सबसेट है। एंड लास्टली डब्ल्यू ले लेता हूं, और इसमें ये तीनों ये दोनों जो एलिमेंट हैं 1 2 वो दोनों ले लिए मैंने। तो W जो सेट है वो भी ए का सबसेट कहलाएगा, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज आल्सो इन द सेट ए। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो चार एलिमेंट हमने चार सेट जो लिए हैं वो क्या कहलाते हैं? ए का सबसेट कहलाता है। क्योंकि तो सबसेट की डेफिनेशन ये है कि यदि किसी सेट के सभी एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो तो पहले वाले को दूसरे का सबसेट कहा जाएगा। तो ये चारों के चारों जो सेट हैं वो उस कंडीशन को, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है सबसेट की, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये क्या है? इस सेट का सबसेट है ये चारों। क्लियर? तो यहाँ पे कुछ चीजें जो हम पॉइंट आउट करें तो हमें एक चीज समझ में आती है, और वो सब क्या है? पहली बात तो आपको समझ में आती है यहाँ से कि एम्प्टी जो सेट होता है या नल सेट जिसको कहते हैं, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ
empty set is a subset of every set. ऐसा दूसरी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे ये सेट देखिए, डब्ल्यू सेट और ए सेट तो इक्वल ही है ना, तो यही सेट खुद का ही सबसेट है. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे हमें समझ में आ रही है कि नंबर ऑफ सबसेट्स of a set A is equal to 2 to the power number of element in that set. That means यदि मैं पूछूं कि A सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है, 2 है, 1 2. ओके, और कितने सबसेट्स हैं इसके, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए आपसे, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए तो कैसे निकाल सकते हैं, 2 to the power number of element in that set है, and that is 2 to the power 2, that is 4. तो काउंट करके देख लीजिए कितना था, 1 2 3 और 4, यही 4 सबसेट्स है ना. तो किसी भी सेट के अंदर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता हो तो हम उसके टोटल सबसेट्स बता सकते हैं. दैट इज द थर्ड पॉइंट. So these are very important points in subsets. So the next concept is about the power set. So first of all, what is the definition of power set? So let A is any set, then collection of all subsets of set A is called power set of A, and is denoted by P of A. Okay, so that means we can easily write as P of A is containing all those sets where B is a subset of set A. That means power set of A is the collection of all those sets B where the B set is a subset of set A. Okay, and as for example, suppose A is a set that is 1, 2. Okay, A set is 1, 2. Then power set of A will contain all those subsets of set A. Just like 5 empty set is a subset of set A. 1, this set is also a subset of set A. 2 is in this set is also the subset of set A, and 1, 2. Okay, so these are 4 subsets. Set A has how many subsets? 4 subsets. So power set of A will contain all subsets of set A, or you can say that power set of A is a collection of subsets of set A. Okay, so if we can note this point here, if number of element in set A is equal to m, then number of element in power set of A must be equal to 2 to the power m. Okay, just here you can say that number of element in set A is 2. Okay, so number of element in power set of A is equal to 2 to the power number of element in it, that is 2 to the power 2, that is 4. Okay, so we can easily remember it. Now we will see what is universal set. Okay, so universal set, what is called universal set?
So suppose let A, comma B, comma B and C are three sets, and capital U is a set such that A is a subset of U, B is also a subset of U, C is a subset of U, then U set is called can be called as universal set in context of these three sets A, B and C. ओके, दैट मीन्स यदि एक ऐसा सेट है U जिसमें जो क्या है A भी U का सबसेट है, A के सारे एलिमेंट U में है, B के भी सारे एलिमेंट U में है और C के भी सारे के सारे एलिमेंट U में है। आप समझिए इस बात को। तो हम U को इस तीनों सेट के कंटेक्स्ट में हम एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं। जस्ट एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट U ले लिया मैंने जिसमें 1, 2, 3 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, और एक सेट लिया मैंने A जिसमें 1, 2, 3 है, दूसरा सेट है B जिसमें 4, 5, 7 रख लिया मैंने, और C एक सेट है दैट इज 1, 2 से लेके 7 तक है, ठीक है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना। अब यदि आप बात करोगे तो A सेट के सारे एलिमेंट U में है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 7 दैट इज आल्सो B इज आल्सो a subset of universal set, C इज आल्सो सबसेट ऑफ U। तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट के लिए ये जो सेट है ना वो सुपर सेट की तरह है। दैट मींस यू कैन से दैट U इज द सुपर सेट ऑफ ऑल दिस सेट्स, है ना। तो यहाँ पे जो U सेट है इस कंटेक्स्ट में, इन तीनों ABC जो सेट है उसके कंटेक्स्ट में U सेट को हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। U सेट इज कॉल्ड हियर एज ए यूनिवर्सल सेट। और भी एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे, इन कंटेक्स्ट ऑफ numbers, you can say natural number is a subset of real number, rational number is a subset of real number, integers is a subset of real number। so इसका मतलब ये निकाल सकते हैं आप, real number can be considered as universal set in this case। मतलब इन तीनों नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर और इंटीजर्स के कंटेक्स्ट में रियल नंबर को आप क्या कह सकते हो, यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट ऑफ ए रियल नंबर। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक सेट है, ये सेट जैसे मैं लिख रहा हूं दैट इज x such that x belongs to real number where x lies between 3 to 5, ऐसा अपन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इतना पूरा का पूरा जो लिखना है कि x एक रियल नंबर है, x 3 से लेके 5 तक के बीच का नंबर है जिसमें 3 और 5 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना। 3 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी, 3.01, 3.001, 3.5, बहुत सारा होता है ना, वी कैन नॉट काउंट देम इवन। तो यहाँ जो आप देख रहे हो 3 से 5 के बीच के सारे नंबर, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है जिसको हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं,
ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो सेट है ए सेट, उसमें x लाइज बिटवीन 3 to 5 ऐसे भी यदि दिया हुआ है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 ऐसे लिखते हैं और 5 इस तरीके पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट देते हैं और इसको हम रीड करते हैं। इट इज रीड एज ओपन इंटरवल 3,5 है ना, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल 3,5। तो इसका जो मतलब निकलता है वो यही निकलता है जो इस सेट में जो मतलब है वही सेम मतलब निकलता है, बट इसका नंबर लाइंस पे इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो समझिए। यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि नंबर लाइन में यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, -1, -2, -3, 4, 5 इस तरीके से इनफाइनाइट तक, इधर -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। नंबर लाइन में -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं। बट यहाँ पे क्या बताया गया है कि ए सेट में वही रियल नंबर एग्जिस्ट कर सकते हैं जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज 3 लेस देन x। देखिए यहाँ पे समझिए 3 इज लेस देन x, दैट मीन्स x क्या है, 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 x से कम है, इसका मतलब x क्या है, 3 से ज्यादा होगा, और साथ ही साथ x क्या होगा, लेस देन 5 होगा, मतलब x 3 से तो ज्यादा है बट 5 से कम है, मतलब 3 और 5 के बीच में है। इसको आप रीड कर सकते हैं, दैट इज x लाइज बिटवीन 3 and 5, 3 and 5 नॉट इंक्लूडिंग। इस वाले केस में जब यहाँ पे लेस देन का ही बस साइन लगा हुआ है तो हम इसमें कहेंगे 3 and 5 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। दैट मीन्स जो भी नंबर 3 और 5 के बीच में आते हैं, अब कितने नंबर आते हैं यदि मैं पूछूं तो आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 3 और 5 के बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं। 3 और 5 के बीच में जो नंबर है उनको हम नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है ना। ग्राफिकली हम कहते हैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 3 और 5 के 3 के ऊपर जस्ट इस तरीके का सर्कुलर हॉलो सर्कल लेना है, मतलब इस तरीके से हमको दिखाना है जिसमें फिल नहीं किया हुआ, मतलब खाली है ये। और 5 के ऊपर में भी इस तरीके का सर्कल लेना है जो कि खाली है। इसका मतलब होता है 3 और 5 के बीच में जो भी नंबर है उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यही रिप्रेजेंटेशन जो है वो किसका है, 3,5 ओपन इंटरवल का है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात। इसमें जैसे मैं पूछूं कि क्या 3.01 इसमें होगा, क्या 3.001 इस इंटरवल में होगा, तो है। क्या 4 है इसके अंदर, तो है ना। क्या 4.9999 होगा इसमें, होगा, लेकिन 5 इस सेट के अंदर नहीं है। समझ रहे हैं बात। सो वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इट इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में इस तरीके का जो रियल नंबर वाला जो कंडीशन है उसमें हम उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए एक तरीका हमें ढूंढना था जिसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल में रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है वो यूज करते हैं। तो यदि हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ओपन इंटरवल किसको कहते हैं, समझिए। Let a comma b a real number such that a is less than b। पहली बात तो आप समझिए, let a comma b belongs to real number। a और b क्या है, कोई भी दो रियल नंबर है, such that a is less than b and capital A is a set, that is x, such that x is a real number and x lies between a and b। और इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है ना, इस सेट को। तो ये जो सेट A है उसके अंदर कौन से रियल नंबर है, वही सारे के सारे रियल नंबर जो A और B के बीच में हैं। तो इसको हम इस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, a, b ओपन इंटरवल, या इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं ओपन इंटरवल a, b। और इसका साफ साफ मतलब होता है कि ए और बी के अंदर जो भी के बीच में जो भी नंबर है वो इस ओपन इंटरवल के अंदर दिखाने से
हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि मैं कहता हूं एज फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से समझिए, यदि मैं कहता हूं कि x बिलोंग्स टू 5 to 10 ओपन इंटरवल, 5, 10 ओपन इंटरवल, तो इसका मतलब ये निकलता है कि नंबर लाइन पे 5 से 10 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग 5 and 10, 5 और 10 को छोड़ के 5 और 10 के बीच में जो भी नंबर हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी बात को नंबर लाइन पे कैसे लिखते हैं, तो एक लाइन खींच लेना है इस तरीके से, नंबर लाइन है ना, माइनस इन्फिनिटी यहाँ लिख देना है, यहाँ प्लस इन्फिनिटी लिख देना है, क्योंकि हमें पता है कि अब इस तरीके से तो मैं 1 2 इस तरीके से लिखूंगा, उस तरीके से लिखने से अच्छा है कि यहाँ कहीं 5 ले लेते हैं, जस्ट एज ए रफली हम कह देते हैं कि मान लीजिए ये 5 है, तो कुछ दूर पे यहाँ पे 10 होगा, समझ रहे हैं बात, इसी नंबर लाइन पे। तो ये जो 5 और 10 के बीच के सारे नंबर हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट का तरीका क्या है कि एक सर्कल यहाँ पे लेना है खाली वाला, और यहाँ पे भी एक सर्कल लेना है 10 के ऊपर। तो इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं कि x जो है वो 5 से 10 के बीच में ही लाई कर रहा है, 5 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। दैट मीन्स 5.01, 5.001, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये सब इसमें है। और इवन जितने भी इरेशनल नंबर 5 और 10 के बीच में होंगे वो सारे के सारे इस के अंदर ओपन इंटरवल वाले में एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑल नंबर लाइंग बिटवीन 5 and 10 आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल से ऐसे हम डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्लोज्ड इंटरवल को कैसे डिनोट करते हैं। तो पहला तरीका, फर्स्ट वे तो सबसेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का हो गया ओपन इंटरवल, है ना। सेकेंड वे क्या है, दूसरा तरीका क्या है, ये नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके। सेकेंड तरीका जो है वो देखिए, ये फर्स्ट तरीका हमने पढ़ा, दूसरा तरीका है क्लोज्ड इंटरवल। और एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया A और इसमें लिख दिया x such that x belonging to real number and x is lying between -1 to +1, इस तरीके से, है ना। -1 यहां साफ साफ समझ में आ रहा है, लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब x क्या है, -1 या तो -1 से बड़ा नंबर है। x इज, देखिए -1 इज लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। x क्या है, -1 से बड़ा नंबर है, और साथ ही साथ मैं क्या लिख रहा हूं, x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इसका तो मतलब ये निकला कि x क्या है, -1 से बड़ा है, और इधर क्या लिखा हुआ है, x 1 से छोटा है। दैट मीन्स x क्या है, -1 और 1 दोनों के बीच का नंबर है, इंक्लूडिंग -1 and 1 इस वाले केस में, क्योंकि दोनों पे इक्वल का साइन भी यहाँ लगा के रखा हुआ है। तो इसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो एक मेथड यूज करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। और उसको कैसे लिखा जाता है, यहाँ देखिए, इसी बात को ऐसे लिखा जाता है, इस तरीके का ब्रैकेट लिया जाएगा इस बार, और यहाँ -1 और यहाँ +1, और इसको हम रीड कैसे करेंगे, इट इज रीड एज, इसको पढ़ते कैसे हैं, क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1, क्लियर। इसका साफ साफ मतलब होता है कि क्लोज इंटरवल -1 to +1 रीड करेंगे, और इसको हम समझेंगे कैसे कि -1 और +1 को के इंक्लूडेड उसके बीच वाले जितने भी नंबर हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सेट के अंदर, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट दिस सेट इन द रोस्टर फॉर्म, बिकॉज रोस्टर फॉर्म में हम नंबर्स को सेपरेट करते हुए जो है वो लिस्ट करते हैं बाय यूजिंग कॉमाज, लेकिन यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है। इवन आप कह सकते हो कि -1 के बाद यदि मैं इसको लिखना चाहूँ इस सेट को, सपोज मान लीजिए कि मैंने पहला एलिमेंट को -1 लिख दिया, अब अगला एलिमेंट यदि मैं पूछूं कि -1 से +1 के बीच का कौन सा नंबर होगा, 0.99, है ना, क्योंकि नंबर लाइन में क्या होता है, नंबर लाइन में 0 यहाँ, -1 यहाँ, +1 यहाँ, तो -1 से +1 के बीच का नंबर होना चाहिए। तो -1 के बाद यदि मैं पूछूं कि कौन सा नंबर आएगा, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि -0.99 होता होगा, ठीक है ना।
बट कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर ये इससे भी जो है ना वो नजदीक वाला नंबर यहाँ पे -0.99 हो सकता है, 999 हो सकता है, कोई बोलेगा -0.99999 होगा. So it is not possible to predict which real number just comes after -1. So it is not possible to write this set in this format. Okay, इस तरीके से इस सेट को लिखना पॉसिबल नहीं है रोस्टर मेथड में. तो हमने क्या किया, इसको एक तरीका निकाला जिसके थ्रू हम इसको पूरे के पूरे जो सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको हम इंटरवल मेथड में लिख सके. इस तरीके को रिप्रेजेंटेशन को हम इंटरवल मेथड भी कहेंगे. ठीक है ना, दिस मेथड इज कॉल्ड इंटरवल मेथड. तो इस बात का मतलब समझिए, ये जो सेट है उसको लिखते तो ऐसे हैं और ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. ये -इंफिनिटी हो गया, इधर +इंफिनिटी है, दैट मींस पूरा का पूरा नंबर इस रियल नंबर पे इस नंबर लाइन पे लाई कर रहा है. और इस पूरे के पूरे जो सेट है उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, -1 के ऊपर एक डॉट लेना है. ठीक है ना, डॉट विथ ब्लैक स्पॉट, मतलब आपको हॉलो सर्कल नहीं, इस बार जो है वो ये डार्क सर्कल लेना है. ठीक, और फिर जस्ट कहाँ तक जाना है, -1 के जस्ट ऊपर ले रहा हूं मैं, ध्यान से इसको देखिए, -1 के जस्ट ऊपर, अगर +1 के जस्ट ऊपर एक डार्क करना है. मतलब इसका मतलब होता है कि -1 भी इंक्लूडेड है, +1 भी इंक्लूडेड है, और उनके बीच में जितने भी नंबर हो सकते हैं वो सारे के सारे इंक्लूडेड हैं. वो इसको हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा सा सर्कल जो है वो मैं यहाँ पे अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 से लेके +1 तक जो भी नंबर्स हैं वो तो है ही इसके अंदर, इवन -1 and 1 बोथ आर इंक्लूडेड. सो ये जो सेट है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो बात तो क्लियर ही है. बट यदि मैं पूछूं कि क्या इसके अंदर इस सेट में 0.5 होगा इसमें, तो 0.5 बिलोंग्स टू सेट है ना. क्या इसमें 1.01 होगा इस वाले सेट में, तो वो इस सेट में नहीं होगा. आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, है ना. यदि मैं पूछूं कि 0.99 इस सेट में होगा क्या, तो होगा इस सेट में, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है ये. मतलब -1 और +1 के बीच में कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो या कोई इंटीग्रल नंबर हो, जैसे 0 है तो 0 भी तो इस सेट के अंदर होगा ना. 0 इस सेट के अंदर है, ये सेट में है. या आप कह सकते हैं 0 जो है वो -1 to +1 क्लोज इंटरवल का ही एलिमेंट है. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं. हाँ, जहां तक इसके यूजेस की बात है कि हम कैसे यूज करेंगे, तो जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ेगा तो आप देखोगे कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारा डोमेन रेंज, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, तो मतलब यहाँ पे जो है वो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, है ना. सेट थ्योरी का तो है ही, साथ ही साथ आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं या जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, उन सब में आप नंबर्स के बारे में ही मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, हम सब लोग जानते हैं. तो नंबर्स के बारे में जब आप पढ़ोगे तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करना तो आना ही चाहिए. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये सब आप याद रखिए और इनको जो है वो इनके क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करने वाले हैं. ठीक, सो दैट इज द सेकंड मेथड, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, है ना. क्लोज्ड इंटरवल में दोनों तरफ इस तरीके का ब्रैकेट लेना है. ओपन इंटरवल में आपको पैरेंथेसिस वाला ब्रैकेट दोनों तरफ लेते हैं, क्योंकि वहां दोनों एक्सक्लूडेड होता है. यहाँ दोनों इंक्लूडेड है, -1 भी और +1 भी, तो दोनों पे ये वाला ब्रैकेट यूज करना है. ठीक, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली कि let a comma b both are real number where a is less than b and a is a set that is x such that x belongs to real number where x lies between a and b. यहाँ पे मैंने क्या किया, x a और b के बीच में है इंक्लूडिंग a एंड b. तो इसी सेट को जो है वो ऐसे क्लोज इंटरवल a to b हम रिप्रेजेंट करेंगे. मतलब छोटा पहले लिखते हैं, बड़ा बाद में लिखते हैं. जैसे -1 1 से कम है तो -1 पहले 1 बाद में. तो ये तरीका हम यूज करते हैं कब, क्लोज इंटरवल के अंदर. और नंबर लाइन पे जहां तक बात है रिप्रेजेंट करने की,
तो आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन लोगे माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ए लेस देन बी है तो ए पहले होगा, बी बाद में होगा नंबर लाइन पे। और इसी बात को क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डार्क लेना है सर्कल यहाँ पे, यहाँ भी डार्क करके इसको ऐसे लाइन दे देना है। तो इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल ए टू बी के नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस गिवन लाइन। नेक्स्ट देखते हैं, द थर्ड मेथड इज कॉल्ड सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। अब ये कैसा रहता है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेमी का मतलब होता है हाफ ओपन हाफ क्लोज। तो ऑब्वियस सी बात है, इस तरीके का मान लीजिए कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूं, x such that x belongs to set of real number where x is less than 5 is less than x and x is less than equal to 7, और इसको मैंने क्या किया, क्लोज कर लिया। ठीक, तो ये वाला जो सेट है इसमें पहला 5 इज नॉट इंक्लूडेड बट 7 इज इंक्लूडेड। इसका मतलब होता है x जो है वो 5 से बड़ा नंबर है और 7 या तो 7 से छोटा नंबर है, ठीक है ना। x इज ग्रेटर देन 5 इज लेस देन x मींस x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 7, दैट मींस x लाइज बिटवीन 5 एंड 7 बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड बट 7 इज इंक्लूडेड। 7 क्या है, उसके अंदर है। तो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, 5 इंक्लूडेड नहीं है तो 5 पे इस तरीके का हम ओपन इंटरवल वाला, जैसे सेमी ओपन पढ़ेंगे या इसको हम लोग ओपन इंटरवल पढ़ेंगे, और 7 के ऊपर हम लोग क्या क्लोज इंटरवल इस तरीके से लेते हैं। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको क्या लेते हैं हम लोग। तो इसको हम पढ़ेंगे 5,7 ओपन इंटरवल और इधर क्लोज इंटरवल। ठीक, और इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड 5,7 है ना। इस तरीके से आप इसको रीड करते हैं, बट समझने का मतलब ये होता है कि ए सेट के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट हैं जो 5 और 7 के बीच वाले हैं, 5 नॉट इंक्लूडेड बट 7 इंक्लूडेड वाले। ठीक, इसी को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, कहीं पे आप 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए। इसमें ये नहीं कि मतलब कितना दूर लेना है, कितना नजदीक लेना है 5 और 7 को, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं 5 होगा, कहीं ना कहीं 7 होगा। मान लीजिए यहाँ 5 to 100 भी होता तो यहाँ मैं 5 लेता, यहाँ 100 लेता, क्योंकि दैट इज नॉट पॉसिबल टू राइट 5, 6, 7, मतलब वो सारे नंबर लिखने तो पॉसिबल नहीं है 100 तक जाना। तो जैसे 5 to 7 ही है, यहाँ तो आपको वैसे भी लिख सकते हैं, और 100 तक हो तब भी 100 यहाँ पे ले लेना है, कहीं भी आप ले सकते हैं कुछ डिस्टेंस के बाद। ठीक, एक रिप्रेजेंटेशन का ही तरीका है। इससे बस समझना ये है कि किन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, वो जस्ट एज ए अपने को नॉलेज होना चाहिए उसका, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 5 पे ओपन के लिए हम लोग कैसे लेते हैं, ये हॉलो वाला सर्कल, और 7 पे क्या करना है, क्लोज, इस तरीके से ब्लैक डॉट वाला, है ना। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। इसी बात को आप ऐसे लिख सकते हैं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर where a is less than b and a is a set that is x comma x such that x belongs to real number where x is lying between a and b where b is included but a not included can also be represented as a comma b. So a equal to x such that x belongs to real number, x is lying between a to b where a is not included but b is included can be written as a comma b semi open semi closed. ओके, और इसको मैथमेटिकली जो है वो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस तरीके से एक नंबर लाइन ले लीजिए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, a इज लेस देन b, सो a यहाँ होगा, b। सो नंबर लाइन तो सब लोगों को पता होगा, नंबर क्या होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जैसे जैसे हम जाते हैं वो इंक्रीज करता जाता है। तो a यदि b से यदि हम कम लेंगे तो a पहले होगा, b बाद में होगा, ठीक है ना। नंबर लाइन पे जानते हैं सब लोग, 0 के बाद 1 आता है, 0 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। इधर से जैसे मैं कोई भी नंबर लिखता हूँ तो जैसे मान लीजिए यहाँ 0 है तो -2 -1 1 2, तो क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर इंक्रीज होता जाता है। दैट मीन्स -2 इज लेस देन -1 इज लेस देन 0,
तो -1 जो होता है वो ग्रेटर देन होता है -2 को। आई थिंक सब लोगों को इतना तो शुरुआत में ही हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो दैट मीन्स नंबर जैसे जैसे आगे नंबर लाइन में बढ़ेगा वैसे वैसे राइट साइड में हम जैसे जैसे जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक। और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो नंबर हमारा जो है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे यहाँ पे ए इज लेस देन बी, तो इस तरीके से ले लिया। ए पे ओपन रखना है तो दैट मीन्स ए इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ पे हॉलो वाला सर्कल लेना है। और आगे इस तरीके से बी को इंक्लूड करना है तो बी के ऊपर डार्क सर्कल लेना है। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। एक और जो लास्ट है दैट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन, है ना, 4th नंबर, वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। 4th इज सेमी ओपन। एक सेट मैंने लिया A, that is X, such that X belonging to real number where X is lying between 3/2 to 5/2। ओके, इस तरीके से लिख लिया मैंने। 3/2 से लेके 5/2 है, इसमें 3/2 तो इंक्लूडेड है बट 5/2 इंक्लूडेड नहीं है। 3/2 का मतलब होता है 1.5 और 5/2 का मतलब होता है 2.5। क्लियर? तो इसलिए में 3/2 छोटा नंबर है, 5/2 से के कंपेयर में बड़ा नंबर है, मतलब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, जो इंटरवल मेथड है उसमें इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ जो ए सेट है या एक्स की जो वैल्यूज है वो किसमें है, एक्स जो है वो रियल नंबर है, लिखने की जरूरत नहीं होती है इस वाले केस में। ये बेनिफिट है ना, जैसे ही आप इस तरीके का सिंबल यूज करते हो तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बस समझना है कि 3/2 पे क्लोज हो यदि हम लिख रहे हैं और 5/2 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन लिख रहे हैं, तो 3/2 से 5/2 के बीच के सारे रियल नंबर्स, नॉट ओनली इंटीजर्स, नॉट ओनली फ्रैक्शनल नंबर या रेशनल नंबर, all rational and irrational number which are lying between 3/2 and 5/2 including 3/2 but not including 5/2 are in this set A। okay, that means x कहां से होगा, यदि मैं लिख देता हूं, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं जैसे x belonging to, इसी बात को पूरे को लिखने के लिए x belonging to 3/2 close interval to 5/2 open interval। इसका यही मतलब होता है कि हम A सेट की बात कर रहे हैं कि A सेट में ये एलिमेंट है जिसमें x की वैल्यू 3/2 से लेके 5/2 के बीच में है, जहां पे 5/2 इंक्लूड नहीं है बट 3/2 इंक्लूडेड है। तो इसी को नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे, देखिए, -∞, +∞, कहीं ना कहीं 3/2 होगा, मतलब 1.5 होगा, 0 के बाद ही होगा, तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 0 1 2 ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। यू ओनली हैव टू डिनोट दैट ओनली नंबर विच इज गिवन हियर। 3/2 होगा क्योंकि ये छोटा है और 5/2 इधर लेना है ना, तो 5/2 मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ, नजदीक लो दूर लो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि इसके बीच में तो वो एक ही नंबर का डिफरेंस है। बट आप कहीं भी यहाँ ले लें, इसको यहाँ ले लें, उससे दैट इज नॉट गोइंग टू बी, बिकॉज वो नंबर तो मैं यहाँ लिख ही रहा हूँ ना। अब बात आती है कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो 3/2 पे जाके इसको डार्क सर्कल कर देना है, ये खींच लेना है यहाँ पे लाइन इसके पूरे में, और 5/2 पे सर्कल इस तरीके से दे देना है। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंटरवल इनटू द ग्राफिकल वे। तो ग्राफिकली फॉर्म में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स, रियल नंबर के सबसेट को या पूरे रियल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसके सेम थ्योरी को। लेट ए एंड बी बोथ आर रियल नंबर, ए क्या है, बी से छोटा है, ए इज लेस देन बी, एंड देयर इज अ सेट ए दैट इज एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी where A is included but B is not included, it can be represented as A closed interval B open, है ना, semi closed semi open, semi closed semi open, okay, that is named as this। और इसी को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो नंबर लाइन को -∞ टू +∞ यहाँ लेना है। A नंबर B से छोटा है तो A पहले आएगा, B बाद में, A को क्लोज रखना है और B को क्या कर देना है, ओपन रखना है, ठीक। तो इस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का
जो तरीका है वो हमने आज के क्लास में सीखा है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऑपरेशन ऑन सेट्स ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और भी बहुत सारे जो सेट्स थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हुए कुछ क्वेश्चंस भी नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है ना, सेमी ओपन सेमी क्लोज के ऊपर जो छोटे मोटे प्रॉब्लम अभी बन सकते हैं। बाद में देखेंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, ये नहीं यदि आपको समझ में आएगा तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।